the types of inheritance. So which, tell me the types. So the first type is Single, multiple, single multi-level. inheritance, Single, multi, uh, multiple, multi-level, uh, multi-level, uh, then hierarchical, multiple, okay, then hybrid, hierarchical and hybrid. hybrid. Okay, so I think we have implemented single and multi-level, correct? Yes, yes. For Python 23, oh sorry, for Python 23, we have implemented all the inheritance. Yes. Okay, for Python 21 and 22, we have implemented single inheritance and multi-level inheritance, or we have implemented this multiple also, I guess. No? सिर्फ एग्जांपल वो मल्टीपल नहीं देखा था, लेकिन वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं ओके, फीचर दिखाया था मल्टीपल बस। नहीं हुआ था, मल्टीपल नहीं हुआ था। ओके, सो ठीक है, तो मल्टी लेवल हो गया था। ओके, सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल हो गया। यस, ओके, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल हो गया था। ओके, सो टुडे विल सी द मल्टीपल इनहेरिटेंस। पाइथन 23 के लिए ये थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा बेयर करो, ठीक है। So in what happened in multiple, so we have two parent class, A and B, and just you need, that means to inherit the properties from A and B into C. So that means C है having C class का दो parents हो गए A और B। तो ये सिनेरियो है मल्टीपल का। तो we can write here, suppose class A, okay, so in class A, suppose Dave, I'll take the suppose M1, okay, fine, print here M1, okay, fine, here class B, then Dave M2, okay, print in M2, okay. So these are the two independent classes. Okay, so we are inheriting these two classes into the, suppose C, class C. Okay, fine. A comma B, you can inherit any number of classes. Okay, so here suppose Dave M3 is equal to, okay, print in M3. Okay, now I can create the object of C. I can access M1, I can access obj M2, M2, okay, I can access obj M3. Okay, fine. You can see in M1, M2, M3, that means from A and B we have inherited these two methods M1 and M2 into this C. समझ में आया? This is the multiple inheritance. सिनेरियो समझ में आया? यस सर। कि हमने क्या किया अभी, दो A में M1 था, B में भी M2, सॉरी M3, तो इस दोनों M1 and M2 are inherited in हेलो, यस सर, ऑडिबल ऑडिबल सर। ओके, आई थिंक ये थोड़ा बैंडविड्थ ज्यादा लेता है क्या टीम्स? यस, सबसे ज्यादा। So here we have inherited this M1, M2 in C. So just like method, we can inherit the constructor as well. So you know the constructor. Suppose I am having the constructor in A, so I can write, so def init, here print, here init from A. Okay, fine. How many times it will execute? Yes. Hello.
इको हो रहा है सर। मेरा नहीं है, किसी का तो भी है, मुझे ये भी इको सुनने आ रहा है, आई थिंक किसी का। सो इट विल एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सी नॉट ए। ए यस। ओके सो या, कोई डाउट यहाँ पे? if I'm writing if I'm writing here init print here init from b, okay fine. Here again I'm writing here in c, here def init print init init from c. So you can see which init will call, definitely c का कॉल होगा, क्योंकि फर्स्ट कहां पे देखा वो अभी आप भी देखने वाले हम, एमआरओ रूल्स फॉर एग्जीक्यूशन, तो डेफिनेटली वो कहां पे कॉल होगा, ओवरराइड हो गया, उसने ओवरराइड कर दिया सबको। समझ में आया? बिकॉज तीनों इसमें बोले तो इसका भी इनिट इसका भी इनिट इसमें आ गया था, लेकिन सी के पास खुद का इनिट कंस्ट्रक्टर था, तो इसने इसका एग्जीक्यूट किया। सो यू कैन सी वी हैव द आउटपुट नोट। यार ये क्यों बज रहा है? ऐसे ही बजता है क्या? सर वो नोट इनवाइट के थ्रू नहीं आया ना, तो एडमिट के लिए पूछता ही है वो। नहीं अभी 100 हो गया ना, अभी 100 ही है इसका कैपेसिटी। वन नहीं वो More than 100 है। मोर देन 100 है। ओके फाइन। कोई डाउट है इसमें भी? नो सर। No sir। ठीक। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अलावा और कौन सा तरीका होता है जिससे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं? ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट। इसके अलावा और कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो क्लास से कॉल कर पाए या कुछ और तरीका हो? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। जनरली जब भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नहीं मतलब मान अदर वे लीजिए नहीं। कंस्ट्रक्टर को कहीं पे और यूज करना हो, कहीं और कॉल करना हो किसी और मतलब मेथड में, तो वहां नहीं। उसका कोई तरीका है या वहां पे भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम बाहर ही कॉल करते हैं जनरली। हाँ, नहीं ये इनिट का तो ओनली ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाकी के जो डंडर मेथड है, ओके नहीं बाकी के कंस्ट्रक्टर तो इनिट ही होता है ना सर, बाकी सब तो मतलब नहीं 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 नहीं, इन टर्म्स ऑफ में डंडर मेथड बोलो कि इनिट इट्सेल्फ मैजिक मेथड ना एक, उसका वे क्या है कॉल का, तो वो ऑब्जेक्ट का है, लेकिन बाकी के जो मैजिक मेथड है उसको हम मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सम हो गया, ऐड हो गया, तो भी सम कब कॉल होता है? ये सम मैजिक मेथड है हमारे पास, सम बराबर है, ये एक मैजिक मेथड है। तो ये कब कॉल होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, तो ये कब कॉल होगा जब हम एडिशन को कॉल करें, तो इसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनिट का नहीं। इनिट का क्या है, इसका जनरली इट इज यूज्ड टू व्हाट इनिशियलाइज, okay, because it's a class structure na, in class structure, so whenever we are creating objects we should have the all the variables should set to some initial state, so that's why we are using init, बाकी कुछ नहीं, इसका एक पर्पस है init का, that's why वो ऑब्जेक्ट कॉल करते ही हमें कुछ वेरिएबल है जो हमें सेट चाहिए, that's it, ठीक है। so init का तो मैंने तो नहीं देखा है कि चलो और दूसरा मेथड रहेगा, तो लेकिन मैक्सिमम टाइम हमने जो कोडिंग किया है तो उसमें इनिट इट्स जस्ट ओनली फॉर द इनिशियलाइजेशन, दैट्स इट। नहीं मैं एक सर इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख रहा था ना, तो हाँ, उसमें उसने क्या किया था कि ऊपर वाले मतलब ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट किया था, और उसी फिर जो नीचे वाली क्लास थी ना उसमें उसने ऊपर वाली क्लास का नाम डॉट इनिट लेके वहां पर इनिट यूज कर लिया था, तो इसलिए मैंने आपको तो पूछा वो कि दैट्स वो बोलूं क्या आपको, वो वे बोले तो एक क्लास का यूज करो, और एक स्मार्ट वे मींस क्या है, बाय यूजिंग सुपर, ओके सुपर
मैं भी जो पढ़ाने वाला हूँ ना, सुपर हाँ। मेथड का कॉल कर कर भी हम इनिट को कॉल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी एक वे है, लेकिन उसका मेन पर्पज क्या है तो इनिशियलाइज। वैसा कॉल करने के तो यार आप वो कैसे भी कॉल कर सकते हो, इसका कुछ नहीं। ओके, लेकिन सुपर कीवर्ड से आप क्लास का नाम मत यूज करो, वी आर डायरेक्टली यूज, वी कैन यूज सुपर। आई एक्सप्लेन, ठीक है, ओके डोंट वरी। श्योर श्योर। ठीक ठीक है सर। श्योर, थैंक्स। ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स एन मल्टीपल। ओके, मल्टीपल। तो इसी वजह से हाइब्रिड भी कर सकते हो। अगर मुझे सपोज और कौन सा है बोलो, हाइब्रिड ना। Yes, यस sir. सर। And hierarchical. हायरार्किकल। अब हाइब्रिड में देखो हम क्या करेंगे, एक सिंपल ए बी सी। आई होप आपको आएगा ये, लेकिन मैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या आप कर सकते हो इसको इम्प्लीमेंट, एक बताऊं? ठीक है, बता देता हूँ। चलो, इसमें क्या चाहिए मुझे, मल्टीपल भी चाहिए और ये भी चाहिए। बोलो कैसे करोगे, कैसे बताया था यार ये रिजल्ट का? सर CND से ही किया था आपने। बीओ सीखेंगे सी से। ठीक है, ऐसा कुछ करो। यहाँ पे करता हूँ मैं कुछ के करता हूँ, करेक्ट। अब इसमें क्या हो गया बोलो, ये कौन सा हो गया, मल्टी लेवल। ये मल्टी लेवल हो गया, और ये दोनों का क्या हो गया, मल्टीपल। मल्टीपल। तो इट्स नथिंग बट द हियरार्चिकल। ठीक है, हम ए बी सी ये करेंगे, क्लास बनाएंगे। चलो इसी को करता हूँ मैं, ए बी सी क्लास बना दिया, इसी। ठीक है, उसके बाद में क्या किया करना है, डी बी एक क्लास बनाना है। ठीक है, क्लास डी डेफ m5, ओके, प्रिंट इन m5। ठीक है, और इन डी भी कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसी और एक ई भी बनाता हूँ, ई भी बनाता हूँ। ओके, so here class E, okay, fine, if m6 in m6। ठीक है, now I'll create one class K, which is inherit from E or C and E. Print, sorry, def m7 in m7। ठीक है, सो नाउ आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब मैं दो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कौन कौन से, इसका डी का, ओके, और किसका, के का। अगर मैं डी का अगर क्रिएट करता हूँ तो डी में ये पूरे आ जाएंगे, करेक्ट। अगर मैं यस। के का करता हूँ तो कौन कौन सी से एंड डी। आएंगे बोलो। सी एंड डी। ओ, यही मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आएगा ए बी सी, ओके, और ई। समझ में आ रहा है, ये पूरा पाइपलाइन आएगा ना इधर से। सो यू कैन सी, suppose I'll create the object of obj of k, okay, so obj dot, देखो m3 m7 m6, देखो कहाँ कहाँ पे m3, ये देखो ये m3 c वाला। सर वहाँ पे मल्टी लेवल में आपने इनहेरिट नहीं किया मल्टी है। लेवल में बी ऑफ ए नहीं किया हाँ, सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी नहीं किया। बी और सी में भी सर। सेम मिस्टेक आई हैव डन इन लास्ट क्लास, बी। here b, correct, then Yes. d also inherit from c, C. okay, so you can see now dot m267, correct, yes or no? यस सर। Okay, can I, okay, so in a ऐसे करता हूँ, आपको समझना चाहिए, in a, in b, in c, okay। इस पे मैं एक सिनेरियो, एक एग्जांपल लेने वाला, डोंट वरी, ये तो हम जस्ट सीख रहे हैं कि
एग्जैक्टली क्या है इनहेरिटेंस, कैसे यूज करना है, कैसे इनहेरिट करना है। ठीक है, ओके देखो, ओ सॉरी वो तो मैंने वो तो है, चलो इसको मैं भी कॉल करता हूँ। कौन सा M1, ओके obj डॉट M2, ओके obj डॉट M3, ओके obj डॉट M7, obj डॉट कौन सा रहेगा M6। ठीक है, now you can see A B C F E, right? E कहाँ पे आ गया यार? करेक्ट, E का भी आएगा ना, कैसा ना, यस सर। क्योंकि E आएगा, C आएगा, A B C E F यस यस सर, के के बदले या फिर F के बदले मैंने F लिखा है, अब के बदले मैंने करेक्ट। नहीं समझे सर, फिर से बता सकते हो? अभी ज्वाइन हुए क्या? नहीं ज्वाइन हुआ हो, लेकिन वो थोड़ा लेट हुआ। Okay, so here we have implemented A, B, C, D, and here E. So these are the classes. We have inherit A into B, B into C, C into D. So this is nothing but the multi-level, और इसका है multiple. So here we just have the child from C and E. So this is the multiple. It's a combination, so that it is a hybrid. Okay, hybrid means क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, बस कौन सा भी इसका भी कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं कि मल्टीपल और मल्टी लेवल का ही कॉम्बिनेशन किया तो हाइब्रिड होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसका भी कर सकते हो, हियरार्चिकल का, ऐसे बाद में बताता हूँ। चलो ऐसा किया, तो इसमें क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या किया, इस वो पहले डायग्राम समझना पड़ेगा। तो देखो इस A को मैंने B में किया, B को मैंने C में किया, C को मैंने D में किया, C को D में किया, खत्म। बाद में मैंने सेपरेट एक E क्लास बनाया, दैट मीन्स ये वाला E क्लास बनाया, फिर इन दोनों से C और E से K को इनहेरिट किया, C और E से मैंने K को इनहेरिट किया, जस्ट दैट्स इट। तो आप मुझे बोलो, जब मैं ऑब्जेक्ट अब K का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट, तो इसमें कौन कौन सा मेथड आएगा, A में के, B में के और C में के, और इधर के E में का, करेक्ट? यस सर। और उसका खुद का K का, इतने मेथड्स आएंगे। यस सर, गॉट इट। ओके, थैंक्स। सो दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, hierarchical, sorry, hybrid, sorry. The next one, hierarchical. आपका क्लास है कि अभी कुछ कौन सा इसके बाद में? सर एक कोड में सेव करके रखो सर। ओके, ये वर्ड में कर रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक में सेव करो। ठीक है। अभी कोई क्लास नहीं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लियो तो चलेगा? हाँ सर, चलेगा। क्योंकि मुझे टारगेट है वो मुझे MRO का कंप्लीट करना है, सुपर का कंप्लीट करना है, तो ऐसा मत समझो क्योंकि और रियली मुझे कल आपको लग रहा होगा कि सर ने यार ऐसे ही छुट्टी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पहले क्लास लिया, मैंने 2, पहले पाइथन 23 का भी लिया, आई थिंक नहीं पाइथन 24 का लिया मैंने, फिर बाद में थोड़ा सडनली मुझे थोड़ा सा ये हुआ, तो दर्द होने लगा ज़्यादा, तो फिर मैंने डिसीजन लेने, अभी बहुत हो गया, अभी चलते हैं हॉस्पिटल, तो थोड़ा ECG वगैरह निकाला। आज मैंने ऑफिस में पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया था मैंने, ठीक है ना, तो डोंट वरी। और आपका सिलेबस का रहा, ऐसा टेंशन नहीं लेना गई, ठीक है ना? ओके फाइन। तबीयत कैसा है सर अभी? हाँ अभी अच्छा है। अब वो कल उन्होंने एक मोबेस बोल के एक समथिंग एक इंजेक्शन देता है, बोलते तो कम्प्लीटली ब्लड के जैसा रहता है, और आज उन्होंने लिपिड प्रोफाइल भी किया मेरा, तो कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है,
तो वो इंजेक्शन देने के कारण मुझे तुरंत में थोड़ा सा तो जो ये हो रहा था ना, मेरा तो सिम्टम्स थे कि चेस्ट में पेन हो रहा था और सेम इसमें बैक में पेन हो रहा था। तो उसके लिए, और मेरा ऑलरेडी मेरे फैमिली हिस्ट्री है अटैक का, मेरे फादर को भी अटैक आके गया है, मेरा जो छोटा भाई था उसको 24 ईयर में ही अटैक आके तो उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो 24 बोल तो 3 साल पहले ही उसका डेथ हो गया था। तो तब से हमारे घर में थोड़ा सा डर थे, बाकी कुछ नहीं, कि उनको लगता है कि यार तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो मुझे मॉर्निंग से ही दर्द हो रहा था। तो फिर चलो जाने दो। आपको लग रहा होगा किसी लोगों को यार ये कुछ छुट्टी गिट्टी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा कल का। और आज भी मेरा इतना बोलो तो ये नहीं था, पर लेकिन सुबह से बोर हो गया था मैं आज कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलता है। सर थैंक्स। हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, सर कुछ वो दिक्कत तो है है, सर? वो तो हाँ है सर, वो यार, हेल्थ हो जाएगा। क्लास का कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा करके ले लेंगे फिर आप यस यस ध्यान रखो दैट्स सर। यस। नहीं वो थोड़ा वही मुझे क्लियर करना था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को जैसे लग रहा है सर वो छुट्टियां दे रहे हैं, ऐसे कुछ दूसरा कुछ प्लान है क्या, ऐसा कुछ। तो सेकंड थॉट कुछ नहीं है अभी फिलहाल में, तो डोंट वरी। सर ये 23 बैच का फाइल हैंडलिंग हो गया क्या? नहीं, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। उनका वापस से होने वाला है, जिसको बैठना है बैठ सकते हो। सर आम्ही ठीक। बसणार आहे। इनको इन्फॉर्म करो बस। बताना सर कब होने वाला है हाँ, फाइल पाइथन 20 को बैठना है ना, 2022 को। ठीक है, चलेगा। मैं जब भी स्टार्ट होगा ना तब भी बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, आप हिरार्चिकल कर सकते हो, हिरार्चिकल आप कर सकते हो। आई होप ये आएगा ना आपको। ये देखो, ऐसे क्लास, ठीक है, करके देता हूँ। ए, बी और सी। सपोज हमने हिरार्चिकल में एक मेथड लिखा M1, दिस M1 कैन बी accessible in this B as well as in C. Okay, so here we can. It is exactly opposite of multiple. Yes, it's exactly opposite of multiple. Okay, multiple में 2 पेरेंट था 1 चाइल्ड था, इसमें एक पेरेंट 2 चाइल्ड है। समझे? हिरार्चिकल सेम में से क्लास A if M1, okay, so here print in A, okay, क्लास B, ये भी इंडिपेंडेंट, सॉरी ये किससे इनहेरिट किया हमने? A से, कोई इशू नहीं, A से। सो डेफ M2 समथिंग, ओके, प्रिंट इन M2, ठीक है। बस C I'll implemented from A, डेफ M3, ओके, प्रिंट इन M3। दोनों को इम्प्लीमेंट करने हैं। आप किसी का ऑब्जेक्ट बनाओ, बी का ऑब्जेक्ट बनाओ, सी का, दोनों भी चाइल्ड है। तो अगर मैं B1 एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी का, ओके, सो हियर B1 डॉट, देखो कौन कौन सा एक्सेस हो रहा है, M2 खुद का और M1 दोनों का, M2 B1 डॉट M1, ओके फाइन। अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C1 इज इक्वल टू सी ओके, C1 डॉट, देखो कुछ किसका आता है, M3 M1 C1 डॉट M3, ठीक है। सो यू कैन सी, ओके, द सेम लाइक मल्टीपल, उसका उल्टा करना है बस, बाकी सर इसको लिमिटेशन है क्या, 2 ही चाइल्ड क्लास? ऐसा कुछ नहीं, okay, We can have multiple childs from one parent, right? yes, you can define any number of parents or any number of childs, Okay sir. okay। यार अब आते हैं
कि सपोज ये इंटरव्यू में पूछते हैं ये क्वेश्चन, अभी इनहेरिटेंस में ये कोई नहीं पूछेगा टाइप क्या है, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, एक सिनारियो पूछेंगे। देखो बहुत सारे, और ये 99% इंटरव्यू में पूछते हैं अगर वो इनहेरिटेंस में आया तो। मैं बोल रहा हूँ 99 ना, 99, दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है कि सपोज आई एम हैविंग दिस सिनारियो, सपोज दिस M1, this suppose this is the class. Okay, so here A, B, C, D. Okay, and all the class having suppose M1 method. M1 method. Okay, suppose we are going to create the object of D. D का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब मुझे बोलो कि मैं अगर मैं M1 को कॉल करता हूँ obj.m1, so which method will get call? डी वाला ही होगा ना, डी का क्लास डी, Obviously. क्लास डी होगा। Yes. Okay, fine. So this scenario is pretty simple. So okay. If I'm having this scenario, okay. So this is the A, this is the B, and this is the C. Here M1, here M1, here M1. I'm going to create object of B. Then which method will get called? B. If इसको it's ऑब्जेक्ट not क्रिएट करता हूँ। inheritance, then it's B. No. We have an inheritance. कौन सा मेथड कॉल होगा? B का ही होगा सर। बी का ही होगा सर। यस, करेक्ट। ये भी सिंपल सिनेरियो है, कोई इशू नहीं, इसको भी बाजू का रखता हूँ मैं। ठीक है, नाउ वी हैव दिस सिनेरियो। ओके, so here A, B, C, and D, and all having M1, 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 M1. This inheritance into this, this into this, this into this, this into this. Now I'm going to create the object of D. इसका मैं object create करता हूँ और obj dot m1 करता हूँ। Which method will get call? D. D. Okay, fine. Yeah. मैं इसको D मेरे D में नहीं है, M1 D में नहीं है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? B। हम लोग सुपर यूज करेंगे तो B। सर जो पहले लिखेंगे वो, सर जो पहले लिखेंगे B लिखेंगे तो जो इनहेरिट होगा, अगर पहले लिखा तो C। ओके, मतलब D के ब्रैकेट में लिखेंगे B, C, तो अगर B लिखूंगा तो B का पहले आएगा, और अगर C, B लिखूंगा तो C का होगा। क्यों ऐसा क्यों? वो वैसे ही वर्क करता होगा सर। हम लोग सुपर यूज कर रहे हैं तो वो उसके पेरेंट B और C तो एक ही तो चाइल्ड है ना, एक ही चाइल्ड है B और C, तो सेपरेट हो गए। हाँ, तो ये कंफ्यूजन जो आप हो रहा है ना, ये जो ऐसा आप बोलो, अब ये मैंने आपको पूछा ये क्यों, तो ये एक रूल है। सो दिस रूल गिवन बाय पाइथन इज कॉल्ड एज MRO। So that means method resolution order। किस मेथड को किस टाइप से रिजॉल्व करना है, उसका ऑर्डर। तो अब ये ऑर्डर मीन्स क्या है, कैसा दिया है कि जब भी कभी ऐसा कोई ऐसा सिनेरियो आएगा तो वो पहले खुद में ढूंढेगा, सेल्फ। उसके बाद में अगर नहीं है तो कहाँ पे ढूंढेगा वो? लेफ्ट पैरेंट। फिर लेफ्ट में नहीं है तो कहाँ पे ढूंढेगा? राइट पैरेंट। राइट में नहीं है तो कहाँ पे ढूंढेगा? पैरेंट में, सिस्टम। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो सिस्टम ऑब्जेक्ट मींस एवरीथिंग इन द पाइथन क्लास ऑन ऑब्जेक्ट। जो कुछ कर रहे हो आप, इनहेरिटेंस भी कर रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी क्लास लिखा है इनहेरिटेंस नाम का, हम जो कुछ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं।
तो फिर हमारे इसमें नहीं है, तो वो जाकर सिस्टम के ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढेगा। दैट मीन्स नथिंग बट ये क्या करेगा, एक एरर ही थ्रो करेगा, एट्रीब्यूट एरर। तो कैसा है सीक्वेंस, कैसा है, सेल्फ, लेफ्ट, राइट, सिस्टम। समझ में आया? अरे समझ आ रहा है क्या? यस सर। अभी एमआरओ कैसे आएगा फिर, अगर मेरे को डी का एमआरओ निकालना है तो क्या आएगा बोलो, एमआरओ ऑफ डी क्या आएगा, डी बी सी ए, डी बी सी ए ओ। ओके, अगर मैं एमआरओ ऑफ बी क्या आएगा, ओके, एमआरओ ऑफ सी क्या आएगा, सी आई ए ओ, ए का क्या आएगा, एमआरओ ऑफ ए एंड ऑब्जेक्ट। ये ऐसा लिखने को लगाते हैं, इंटरव्यू में ऐसा लिखने को लगाते हैं। समझ में? सर ये एक तो बार बस फिर से बताना स्टार्टिंग से, मेरा नेटवर्क गया था इसलिए। ठीक है चलेगा। देखो दिस एमआरओ क्या है कि एक रूल है, रूल क्या है, ये एक रूल है जिसमें क्या होता है कि अगर आपका मेथड, देखो अब यहाँ पे ये मोन है, यहाँ पे ये मोन है, यहाँ पे ये मोन है, यहाँ पे ये मोन है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो डी का, तो अभी को कॉल करते हो तो वो फर्स्ट कहाँ पे ढूंढेगा, खुद में। अगर खुद में नहीं है तो फिर जाएगा लेफ्ट पैरेंट में। ओके, लेफ्ट पैरेंट में। अगर लेफ्ट में नहीं है तो फिर कहाँ ढूंढेगा वो, राइट पैरेंट में। राइट में नहीं है तो फिर उसके पैरेंट में, फिर सिस्टम के ऑब्जेक्ट में। सो दिस मेथड, ये जो मेथड है रिजॉल्व करने का, इसको बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। कैसे कैसे, खुद में, लेफ्ट पैरेंट में, राइट पैरेंट में, अगर उसको पैरेंट है तो उसका पैरेंट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर? कोई बाकी किसको डाउट है और? यस सर, यस सर, डाउट अगर मैं और एक डाउट है, हाँ सर, if a class having more than 2 parents, then वो order left to right ही रहेगा हमेशा? यस, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। मतलब n पेरेंट्स होंगे तो भी सेम? वो भी यस, मैं करके बताता हूँ आपको, एग्जांपल करके बताता हूँ। ये पूरा एग्जांपल के थ्रू मैं करके दिखाता हूँ। अगर सपोज आपके इधर बहुत सारे बोल तो आप, ये नंबर ऑफ क्लासेस है, ठीक है ना, अब ये क्लासेस है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये इनहेरिट हुए सब। सपोज एक के में इनहेरिट हुए, ठीक है। अब ये क्लास यहाँ पे लिख रहे हो सी बी ए डी, ऐसा लिख रहे हो, यस, कोई इशू नहीं। तो ये ऐसा सर्च करेगा, खुद में सर्च करेगा। खुद में नहीं है मेथड हो तो किधर जाएगा, सी में जाएगा। सी में भी नहीं है तो कहाँ चेक करेगा, बी में जाएगा। बी में नहीं है, ए में जाएगा। ए में नहीं है, डी में जाएगा। अगर डी में भी नहीं है, अगर ये खुद ये क्लास बोलो तो ऊपर भी इनका इनहेरिटेंस है, बोल तो सी का इनहेरिटेंस है या बी का इनहेरिटेंस है, ऊपर से आया तो उधर सर्च करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो कितना भी नंबर ऑफ के लेफ्ट टू राइट जाएगा? यस, सी है इधर। हाँ, मतलब सी बी ए डी इसमें भी नहीं है तो वो सी के फिर से लेफ्ट टू राइट में जाएगा? सी के, हाँ, प्रीवियस का इनहेरिटेंस होगा। ओके, सी के। सर अगर इंडिपेंडेंट पेरेंट रहे तो हर एक के, ए के, बी के, सी के, डी के, तो वो कैसे चेक करेगा? इंडिपेंडेंट पेरेंट मींस कैसे? मतलब ए का ऊपर है समझो, डी समथिंग जे है, बी का के है, ऐसे है। तो अगर वो लाइन वाइज जाएगा क्या, ए में नहीं मिला इसलिए उसके पेरेंट में ढूंढेगा पहले? नहीं, इधर क्यों जाएगा वो, इधर नहीं जाएगा वो, ये नेस्टेड थोड़ी हो रहा है। इधर होने के बाद में इधर थोड़ी जाएगा वो, ये सीक्वेंस से जाएगा ना। ये जो के वो कैसे इनहेरिट हुआ आपका, के इनहेरिट से हुआ है ना। पहले ये चेक करेगा वो, ये सीक्वेंस चेक करेगा, ये पूरा सीक्वेंस। अगर नहीं है तो फिर ऊपर जाएगा वो। ओके, ऊपर भी सेम, पहले ए का, देन बी का, देन सी का। यस। अभी
ओके इसमें इसमें ही आपने इसमें जब चेक करेगा वो, तो ये चेक इसमें नहीं है तो फिर वो सी के उधर जाएगा। ठीक है ओके ना? ओके चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम उसको एक करेंगे। चलो बोलो मुझे अभी को एक एक मैं बोलता हूँ क्लास ए डेफ क्या करता हूँ मैं, हर एक इसमें एम वन लेता हूँ, डेफ M1 ओके, जो सेम एग्जांपल मैंने लिया था इन, ठीक है कोई इशू नहीं। हाँ क्लास बी इसको क्या करता हूँ मैं, एक को इनहेरिट करता हूँ। एक्चुअली इसको है ना इंटरव्यू में और एक टर्मिनोलॉजी में अभी नहीं बोलता हूँ मैं, उसको डायमंड डेथ इशू बोलते हैं। ओके यहाँ पे इन बी ओके क्लास सी, ये भी इनहेरिट हुआ है ए से, डायमंड बनाता हूँ मैं डेफ यम चाहिए था ना यहाँ पे। से प्रिंट इन सी ओके क्लास डी इनहेरिट हुआ है बी और सी से, M1 ओके इंट यहाँ पे इन डी ओके फाइन। ये जो साइड में जो दिख रहा है इसका ये क्या है बताओ बोला, क्या बोल रहा है? इनहेरिटेंस दिख रहा है उसका। ये देखो ये क्या बोल रहा है, दिख रहा है क्या, क्या बोल रहा है? सुपर क्लास सब क्लास दिखाता है सर वो। हाँ वो बताता है, ये देखो इज ओवररिडन इन, क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है वो, M1 को देखो मैंने इधर किया तो क्या किया, क्या बोल रहा है, इज ओवररिडन इन BC। यहाँ पे वापस से अगर मैं बताता हूँ, हाँ इधर ओवरराइड्स द मेथड इन A, यहाँ पे देखो ना इसको, ये ओवरराइड इन मेथड इन A सबको। अभी अगर मैं इधर क्लास एक OBJ इज इक्वल टू, अभी मैं D करता हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं, OBJ डॉट देखो क्या आता है, किसका M1 आ रहा है वो, किसका M1 है वो, खुद का सेल्फ डी का। डी का। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको पास करता हूँ पास, देन इट विल सर्च इन, कहाँ पे सर्च करेगा वो, बी में। बी में। अगर बी में भी इसको मैं ये कर देता हूँ इधर, इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, ठीक है बी में इसको अगर मैं पास कर देता हूँ पास, यहाँ पे कहाँ पे सर्च करेगा वो, सी में। ओके और सी में भी अगर मैंने पास कर दिया तो इट विल सर्च इन, नाउ ऊपर जाएगा वो। आप समझ में आ रहा है क्या? यस। ये ऊपर क्यों गया, ये किसका देखा है उसने, बी का पेरेंट देखा है उसने। पेरेंट। तो डाउट था ना आपका किसका इधर, उसको उनको लिए क्वेश्चन, तो ये अभी बी का पेरेंट दिखेगा। अगर मैं बी को पेरेंट नहीं देख रखता था तो फिर वो क्या करता था, सी का पेरेंट देखता था, करेक्ट, क्योंकि बी को पेरेंट नहीं था ना इधर, फिर कहा जाता था वो सी के पेरेंट को। अभी मैं क्या करता हूँ, बी का पेरेंट अलग लिखते हैं, सी का पेरेंट अलग लिखते हैं, ऐसा चलेगा? यस सर। सर पास मेथड ते पास का दिलं ते जरा एकदा सांगा ना. पास स्टेटमेंट माहित नाही का? नाही माहित. ओके कितने लोगों को पता नहीं है? मुझे भी सर नहीं पता था. 10 years मुझे भी। ओके फाइन देखो गाइस, अभी ठीक है बता देता हूँ मैं आपको। देखो पास स्टेटमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट रहता है एक्चुअली, जैसे कि अगर सपोज उसका रिक्वायरमेंट क्या है, देखो रियल टाइम में यूज होता है तो उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर आपको कोड सिंटैक्टिकली लग रहा है, सिंटैक्टिकली बोल तो सिंटैक्स को सपोज चाहिए मुझे, क्लास ए करूंगा मैं, ये मेरा सिंटैक्स है ठीक है, या फंक्शन में डेफ और यहाँ पे फंक्शन का नाम, लेकिन मेरे पास बॉडी नहीं है अभी फिलहाल में, सिंटैक्टिकली करेक्ट है हमारा,
लेकिन अंदर कोई कंटेंट नहीं है। इस सिनेरियो में आपके पास तो कोई कोड तो नहीं है। अब ये फर्दर डेवलपमेंट होगा इन फ्यूचर में, तो उसके लिए हम अगर ऐसा ब्लैंक लिखेंगे तो वो एरर आएगा, बराबर है। तो वहां पे क्या क्या लिखेंगे हम, पास पास करेंगे। जैसे आप जो एक बॉल का गेम खेलते थे, देखो पास करता था, ये आगे से पास करता, ये आगे पास करता, वैसे ही ये क्या करेगा, ये इस पे आ गया, ये कर्सर को आगे पास कर देगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं एक कोई सा भी क्लास ए करूंगा तो मेरे पास अभी कुछ बॉडी नहीं है, ठीक है, क्लास पास कुछ भी नहीं। अगर मैं इसके नीचे प्रिंट लिखूंगा ना, प्रिंट, तो यू कैन सी प्रिंट आउटसाइड द क्लास, जो बाहर आ जाएगा। देखो बोल तो बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, टेस्ट वाला ओके, टेस्ट वाला। तो देखो आउटसाइड द क्लास, तो उसने क्लास ए को एग्जीक्यूट किया, क्रिएट किया मेमोरी में, लेकिन उसका कंटेंट नहीं है, अभी एम्प्टी क्रिएट किया आपने। तो एम्प्टी, तो अगर इसमें मैं कुछ नहीं लिखता था इसमें तो वो एरर देता था। अगर इसमें एरर लिखता था, इनकम्प्लीट सिंटैक्स एरर आता था, करेक्ट। सर तो मुझे सर सिंटैक्टिकली चाहिए। पास के नीचे मेथड डिफाइन किया तो भी वो बाहर ही निकलेगा ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके नीचे, पास के नीचे क्लास के अंदर, हाँ इसके नीचे करो तो यार बाहर ही आएगा वो, ओके। हाँ अगर आप यहाँ पे मेथड लिख रहे हो टेफ m1 और यहाँ पे अंदर पास लिख रहे हो तो दैट्स कंसिडरेबल, समझ में, ये कंसिडरेबल कि मुझे m1 का भी इसके ऊपर पास लिखा तो भी बाहर ही आएगा ना, डेफ नहीं वो लेगा, मेथड नहीं लेगा, बाहर ही लेगा, वो सिंटैक्टिकली एरर बताएगा। सर उसके नीचे गेट पास मेथड है, वो क्यों यूज करते हैं? कहाँ पे गेट पास मेथड, पास लिखा ना आपने, हाँ उसके नीचे गेट पास मेथड भी आ रहा था, उसका क्या मतलब डिफरेंस क्या उस दोनों में? कहाँ पे पास लिखा ना आपने, गेट पास, हाँ वो पहचान सीधा दिखा रहा था उसमें, गेट पास है प्रेडिक्शन क्या, ऑटो सजेशन में ये गेट पास में हाँ ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, मैं भी देख के बताता हूँ, ओके सो डोंट वरी, ये मुझे भी नहीं पता था गेट पास, लेकिन मैं उसको एग्जैक्ट देख के बताता हूँ आपको, डोंट वरी। पास का समझ में अभी, अगर मेरे फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे मेरे m1, लेकिन मेरे पास बॉडी नहीं है अभी फिलहाल में, उसका कोई बॉडी नहीं है, तो मुझे सिंटैक्टिकल चाहिए फंक्शन, अभी चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, डेवलपमेंट के टाइम ही मैंने आपको डेवलपमेंट करके दिखाया था। देखो बोलते एक बैंक का हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसे एम्प्टी बनाया था, मैंने पास लिख दिया था, करेक्ट, डेफ m2 ऐसे कुछ किया था। तो रियल टाइम में भी ऐसा ही होता है, हम क्या कर लेते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते, टेम्पलेट बना लेते, फिर छोटे कोड लिखते जाते, वो डॉट कनेक्ट करके बस एप्लीकेशन बन जाता है। जो स्टार्ट होता है ना वो एकदम स्मॉल स्टेप से ही होता है, समझ में आया क्या। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या क्या लगने वाले मॉड्यूल, कौन कौन से फंक्शन लगने वाले हैं, कौन कौन से क्लासेस लगने वाले हैं, ये इसका लिस्ट निकाल लेते हैं। फिर लिस्ट लगने के बाद में उनका नाम के हिसाब से हम वो क्लासेस बना लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा लॉजिक तो नहीं है अभी फिलहाल में, सिंटैक्टिकली लग रहा है हमें, सिर्फ लॉजिक हम बनाएंगे, तो फिर एक क्लास को डिजाइन करेंगे, फिर वो कहेगा दूसरे क्लास को करेंगे, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्लासेस तो क्रिएट करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास लेते हैं। इससे क्या आता है, एरर नहीं आता, बाकी कुछ नहीं। इट्स अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको, पास स्टेटमेंट। तो जैसे जैसे उसमें अपन सिंटैक्स लिखने चालू करेंगे वैसा वो पास रिमूव करते जाएंगे। यस, सो फॉर at the time of development we don't have the code for that particular block, so in that case we can write a pass for temporary purpose, okay। रियल टाइम में भी कैसा कहाँ पे यूज करना है वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, वो भी दिखाता हूँ मैं कि रियल टाइम में भी हमने पास को यूज किया है। कि चलो एल्स में कुछ नहीं है, एल्स में पास कर दो, इफ है एल्स है, या ऐसा है इफ कंडीशन है, एलिफ कंडीशन है, एलिफ कंडीशन है, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, एल्स में कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, नहीं है तो पास कर दो, चलो जान दो, तो ऐसा भी किया है हमने, ठीक है ना। सो ये पास स्टेटमेंट क्लियर हुआ।
सिंपल है, ऐसा कोई ये इंटरव्यू sir. वगैरह में नहीं, इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, यस सर। लेकिन कोडिंग में लगता है, इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं। हेलो सर। यस यस यस। सर वो ये वाला जो प्रोग्राम है ना, एक मिनट। हाँ हाँ सर, यहाँ पे जैसे सर आपने बोला था कि जैसे क्लास डी है B, C, तो उसमें के बाद ये अगर बी में चेक करेगा, उसके बाद में नहीं हुआ तब सी में चेक करेगा। करेक्ट तो करेक्ट। सर आप अभी अपना क्या हुआ था, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से यहाँ से अपन भटक गए थोड़ा सा। तो सर आप हाँ यहाँ हाँ पे बता रहे थे सर कि हाँ यहाँ हाँ, पे अगर पेरेंट्स अगर जो है बी ना का वो बी चेक का करते हैं। पेरेंट अगर अलग है और सी का पेरेंट अलग है, करेक्ट ना? हाँ सर, है सर। ओके हाँ, अगर बी का पेरेंट क्या करते हैं हम, बी का पेरेंट ए ही रखते हैं और सी का क्या करते हैं, एक एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास टेम ओके डेफ m1। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पूरे चेंजेस रिवर्ट करता हूँ पहले, ठीक है ना? m1 आ गया सब में। अब मैं क्या करता हूँ, बी ए से इनहेरिट हुआ है और सी को हम क्या करते हैं, क्लास टेम करते हैं डेफ ओके फ्रॉम टेम ओके, इसको भी टेम, करेक्ट? ऐसा ही ना? सिनेरियो समझ में आया Yes, कभी sir. किसी के? मैंने यस सर। लिख के बताता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, फिर एक दर समझो। हमने क्या किया, हमने क्या किया, ए इसके नीचे बी और यहाँ पे टेम्प इसके नीचे सी, और लास्ट में कौन सा किया हमने, कौन सा क्लास है लास्ट में, डी। डी को क्या किया है, बी एंड सी में। बी एंड सी में। अब इसका अगर मैं यह मारू लिखूंगा कैसे आएगा, पहले डी फिर बाद में सी बी और सी, बराबर है? यस ऐसा नो, अगर ये यस नहीं सर। मिलता तो फिर क्या आएगा, को ए एन टेम्प, दिस इज द एमआरओ, A and temp. करेक्ट? सो दिस इज द एमआरओ एक्चुअली। देखेंगे अगर, देखो अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, और मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया इसका, obj इज इक्वल टू टी, ठीक है, जे obj डॉट m1, कोई इशू नहीं, किधर का होगा ऑब्वियसली, क्या हुआ, अरे वो टेस्ट टेस्ट किया मैं, इधर रिटर्न चाहिए इन डी, ठीक है, ऑब्वियसली होगा, यही होगा। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे पास लिखता हूँ, तो क्या होगा, किसका होगा, किसमें का होगा, बी में का, बराबर है? इसमें बी में का, बी में जाऊंगा मैं, पास लिखूंगा, पास ओके, सो यू विल सी, oh sorry something is wrong, इनहेरिटेंस करेक्ट है क्या, ओह सॉरी गलत लिख दिया, एमआरओ गलत आ गया हमारा, क्यों? ये करेक्ट है लेकिन एमी ओके टेम का सर ये बी का पेरेंट तो नहीं ले रहा है सबसे पहले? हाँ यस, इटरेटिव हो रहा है यार, इटरेटिव हो रहा है, बी का पेरेंट ले रहा है पहले। माय बैड कैसे हो रहा है ये, डी को भी बाद में उसने चेक किया, इसका पेरेंट ए। यस एक सेकंड ना, हम क्या करते हैं, उसको भी ये करते हैं, जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट, उसको क्लास थ्रेड डेफ m1 या फ्रॉम z ओके, ओह
को इनहेरिट सर ए में चेंजेस करो ना सर। ए ऑफ जेड। यस, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। ओके, ये गलत है, ये गलत है। एग्जैक्टली क्या होता है? इटरेटिव होता है, इटरेटिव। ओके, सो जब भी लेफ्ट ऑफ सर है ना सर? हाँ, सबका लेफ्ट होता है, यस। तो वो जो यूनिवर्सल रूल एक्चुअली वो कैसे, लेफ्ट सेल्फ, लेफ्ट राइट, और तो ये लेफ्ट का जब तक होता है नहीं, तब तक दैट मीन्स, अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा, अच्छा हो गया एग्जांपल ले यार, मेरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज मेरा ये है, गलती होने के बाद ही ज्यादा समझ में आता है। ये बी, ऐसे इसके लिए तो बोलता हूँ यार, क्वेश्चन पूछते जाओ, क्वेश्चन से क्या होता है, क्लियर हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। ये और ए के उस पर सपोज एक्स है, इसका पेरेंट अगर वाई है, ठीक है, अगर आप इसको इनहेरिट कर रहे हो सबको, ठीक है ना, यहाँ पे इसका सपोज जेड है, जेड को जेड में इनहेरिट किया, तो ये m1 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 सपोज ऐसा है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इसका ऑब्जेक्ट अगर ये नहीं है इसमें, तो वो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं है तो वो आगे नहीं चेक करेगा, इधर नहीं चेक करेगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो एक्स में जाएगा। एक्स का भी वो चेक करेगा, एक्स को अगर पेरेंट है, एक्स इधर वाई है ना, इधर एक सपोज पी है, क्यू है, आर है, तो इसमें भी वो किसको चेक करेगा, वाई में, वाई को। अगर वाई में भी नहीं है तो वो किसको चेक करेगा, इसका पे कुछ पेरेंट रहेगा, सपोज ओ एंड यम में, वो किस में चेक करेगा, वापस से ओ में चेक करेगा। तो वो लेफ्ट 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 जब तक होता नहीं, so that's why I think M और O it's सर लेट सपोज जो आर है, ये ग्रैंड पेरेंट समझते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर का, इसमें अगर पास लिखा हुआ है तो वो नीचे जाके जो राइट हैंड साइड बी में भी चेक करेगा। हाँ, अगर इसमें पूरे में नहीं मिलता है अभी वो सिनेरियो, तो वो ऑब्वियसली आगे जाएगा बी में। लेफ्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ही वो आगे जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे जेड में पास लिखता हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना आप, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, इसमें अगर जेड में ऑब्वियसली जाएगा, आगे जाएगा, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। दिख रहा है सर? मतलब लेफ्ट रूट एंड देन राइट आएगा ना? यस वैसे ही। सर ए के अगर दो पेरेंट है, मान लीजिए वाई और जेड, तो अभी जेड में पास कर दिया हमने और वाई में नहीं किया, तो वो वाई को करेगा ना, हाँ, वाई में करेगा। यस वही तो हुआ ना अभी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो में क्या हुआ, हमारे सिनेरियो में ए से हमने बी को किया था, एम से हमने सी को किया था, और ये दोनों से हमने डी को किया था, करेक्ट। फिर मैंने जेड किया, इसको जेड। अभी वो हमारा इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, और इसमें भी पास है, तो इसने चेक किया तीनों को, तो फिर वो आगे गया ना, वो किधर गया, सी में। समझ में? सर ए के अगर दो पेरेंट है तो दोनों को चेक करेगा ना? हाँ, ए का क्या? ओके, हाँ, ए के अगर और एक पेरेंट है तो उसमें भी चेक करेगा वो, जेड में चेक करने के बाद। वही तो किया ना उसने, जेड में जाने के बाद फिर सी में आया। नहीं, उनका क्वेश्चन अलग है। अगर सपोज ए के दो पेरेंट है, अगर मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही खतरनाक सिनारियो बोल रहे हो आप, पी, ठीक है ना, ओके, डेफ m1, ओके, प्रिंट फ्रॉम पी, और इसमें करता हूँ मैं पी। यही सिनारियो बोला ना आपने? यस सर, एग्जैक्टली। ओके, तो अभी आएगा वो पी आएगा, पी। यस, ऑब्वियसली पी आएगा। पहले वो लेफ्ट का सब कुछ चेक कर लेगा, सब कुछ चेक करेगा, बाद में वो राइट में जाएगा। यस, इतना कौन ऐसा सिनेरियो लेफ्ट हाँ बोलो ना। लेफ्ट में चेक करेगा, अगर राइट में पेरेंट नहीं रहा कोई तो ऊपर जाएगा, और एल्स ऊपर भी नहीं रहा कोई तो फिर वो नीचे आके राइट में जाएगा, राइट सर? यस अगर क्या होगा,
वो लेफ्ट का पूरा क्लियर कर लेगा गाइस, लेफ्ट का, ये जो लेफ्ट है ना, अभी देखो यहाँ ये इसी सिनारियो में अगर अभी देखो ये जेड में नहीं था, वो ए में गया, आगे नहीं गया, आगे नहीं, उसके पेरेंट में गया, लेफ्ट पेरेंट में गया, लेफ्ट पेरेंट में गया, वो आगे गया वाई लेफ्ट पेरेंट में, अब इधर नहीं मिला उसको, वाई में नहीं मिला तो किस में चेक करेगा, पी में चेक करेगा, पी में नहीं मिला किस में चेक करेगा, क्यू में चेक करेगा, क्यू में नहीं मिला पी में, फिर अभी पूरा ही नहीं मिला तो फिर वो जाके कहाँ चेक करेगा, वो बी में। बी का सेम सिनेरियो, उसका लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अगर उसको राइट है राइट में चेक करेगा, उसको राइट है राइट में चेक करेगा, नहीं मिल रहा है कहीं पे, वापस से आकर किसको चेक करेगा, सी में। पाइथन 23 समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन किसने रेज किया? पाइथन 23 वाले किया क्या? ओंकार सर। यस। हाँ यस सर 23 ओंकार 23 वालों ने किया है? यस सर। अरे मुझे लगा ठीक है चलो, बढ़िया। मुझे कल से डाउट था सर वो, लेकिन कल पूछना भूल गया था मैं। ओके चलो, नहीं वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपने 23 ने क्वेश्चन पोस्ट कम। हाँ बोलो इसको ही करो सर। उसमें जो ए है ना सर, ए का अगर 2 पेरेंट रहेगा तो पहले ए के 2 सेकंड पेरेंट में चेक करेगा, बाद में बी में जाएगा ना, लेफ्ट पेरेंट में नहीं लेफ्ट में चेक किया, फिर एक्स में चेक किया, फिर पी में किया, हाँ। फिर पी का क्यू में किया, 2 पेरेंट है तो उसके बाद वापस ए वाले के सेकंड पेरेंट में जाएगा कि बी वाले में जाएगा? बी। जैसे सर ए का लेफ्ट हाँ, चेक करके किया, एक्स के 2 पेरेंट है ऊपर तो सपोज, तो पी अगर और क्यू में चेक कर लिया, एक्स और सपोज यहाँ पे कुछ टेम्प 1 है ऐसा, बराबर? हाँ तो वो टेम्प 1 में आएगा, टेम्प 1 में। ओके, जैसे हमारा नीचे का सिनेरियो था वैसे ही होगा। अगर इसमें अब उसको कैसे करूँ आपको बताओ, ए जेड है, जेड को फिर 2 पेरेंट बनाने पड़ेंगे उधर। ठीक है, एक बार क्या करो आप, ये डायग्राम निकाल के करो, आएगा क्या आपको? यस सर, करके देखेंगे हम। करके देखो, करके देखेंगे। क्योंकि आपका जितना वो करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे डायग्राम निकाल कर, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दी एमआर। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी इतना डीप में वो देखा नहीं था कि ऐसा इतना सिनेरियो होता है बोल के। ठीक है, चलो, थैंक्स। कोई डाउट है अभी एमआरओ में? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे देखिए अभी हम लोग जो सुपर पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट इनहेरिटेंस से ये कर रहे हैं, हम लोग कोई सिंटैक्स नहीं लिखते कि उसको कॉल करना है, वो ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है, राइट, पेरेंट्स को। तो अभी हमारे पास एक क्लास है, लेट अस सपोज क्लास है, उसके अंदर 2 मेथड्स है विद सेम नेम, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो जाएगा, हम लोग ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करके उससे कॉल कर रहे हैं मेथड को, तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा ओवरराइड करेगा नीचे वाले को, यानी ऊपर वाले को ओवरराइड करेगा, नीचे कॉल होगा। करेक्ट। बट इन सम सिनेरियोस मुझे ऊपर वाला भी चाहिए। तो उसके लिए फिर आता है सुपर ये अच्छा सुपर मेथड। ओके, वही मैं लेने वाला था, और आपने तो उसी ये भी सुपर ही है ना सर जो आप अब पढ़ा रहे थे? ये भी तो नहीं, सुपर ही एमआरओ था, एमआरओ। अच्छा, ये एमआरओ, ओके। आप मैं वो उसी को स्टार्ट करना था, लेकिन आपने उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया। ओके ठीक है, अब ये नहीं, अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? Yes sir. That means we have क्या हो कोई डाउट है तो पूछो गाइस। क्लास नोट करो, def m1, ठीक है। ओके, here print in from A, okay, here class B, okay, is inherited from A, ठीक है। def m1, here print from B, okay, class C B, okay, def m1 print from C, ठीक है। यहाँ पे obj क्रिएट किया, obj इज इक्वल टू C का क्रिएट किया, ठीक है। obj डॉट m1,
ऑब्वियसली कौन सा कॉल होगा, सेल्फ कॉल होगा। ठीक है, अब मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे बी का भी M1 चाहिए। ओके, मुझे बी का भी M1 मेथड कॉल करना है, तो उसके लिए है सुपर मेथड। उसके लिए सुपर, पहले उसका थ्योरी क्या है, इट इज यूज टू कॉल द पेरेंट मेथड। ओके, ये आपको यूज टू कॉल पेरेंट मेथड। किसके लिए होता है, पेरेंट मेथड। पेरेंट मेथड है जिसको उसमें वो कॉल करने की। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे अभी M1 कॉल करना है, वो भी बी में का, तो यस कहाँ पे करना है, इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन राइट सुपर डॉट कौन सा M1, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ये M1 जो कॉल करेगा वो किसका करेगा, वो उसके पेरेंट का, ए का नहीं, किसका, सी का बी पेरेंट का, कौन है, बी। बी। तो यू कैन सी पेरेंट का ही होगा, याद रखो, ऊपर का नहीं। अगर मैंने बी में लिखा, बी में सुपर, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके ओके, दिस वन। समझ में आ रहा है, तो यस सुपर सर। मेथड इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट मेथड। सर सपोज दो पेरेंट रहे तो मतलब पेरेंट का भी करेगा और खुद का भी करेगा, ऐसा है क्या? अगर दो पेरेंट रहे तो उसके लिए वहां पे आता है यमारो। अगेन वो रूल है गाइस, यमारो रूल है, वो एग्जीक्यूशन का रूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, आई थिंक शुभम का था। शुभम, आई थिंक कुछ तो भी क्वेश्चन था ना आपका। नहीं, मैंने पूछा नहीं सर, कि मैंने भी अगर पूछा सुपर यूज किया तो हाँ पेरेंट का भी करेगा और खुद का भी करेगा। हाँ, आप जहाँ पे करोगे, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अगर नीचे लिखता हूं मैं, अगर इसको नीचे लिखता हूं, तो ये क्या करेगा, पहले प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट सी करेगा, फिर बाद में हमारा ये करेगा। यस, देखो उल्टा हो गया ऑब्वियसली। पहले क्या हुआ, प्रिंट सी हो गया, फिर बाद में वो बी कॉल हो गया, बी, बी में से फिर पहले क्या कॉल हुआ, ए हुआ, पहले ए हो गया फिर बी। इसको अगर मैं नीचे लिखता हूं, तो फिर वो आएगा सी बी ए, सी बी ए। क्या हुआ, बोल तो प्रिंट हुआ सी, फिर उसके बाद में ऊपर का मेथड कॉल हुआ पेरेंट का M1, ये M1 आया, प्रिंट बी हुआ, फिर बाद में उसके ऊपर का कॉल हुआ M1। वो कॉल पे कहाँ पे कॉल कर रहे हो आप, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा सर वो, राइट? सीक्वेंशियल, यस। सर हम लोग एमआरओ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि पेरेंट में ना ढूंढे, चाइल्ड में नहीं है, वो फिर नहीं करना उसके है। लिए ना, उसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते। उसके लिए अभी देखो, जब भी आप मॉड्यूल लिखते हो, मॉड्यूल बराबर है, तो जब मॉड्यूल हम पैकेज में इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ एक फाइल रहता है, देखो कौन सा फाइल रहता है, इनिट वाला, मेन या इनिट वाला। यस यस। उसमें फिर ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, आपको जो करना है ना ये, ओके, उसमें सेटिंग वो चेंज यानी यस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करके। यस यस यस, उसमें हमने एक इसमें मैंने वो देखा था वो एक्चुअली। ठीक है ना, मैं उस पर देखता हूँ उसका, अगर आप एक सेकंड, है वो init ना, init.py configure to change, कौन सा है वो, ये मारो। ठीक है ना, मैं देखता हूँ उसको लिखने का कैसा है वो देखता हूँ। ओके सर सपोज पेरेंट के पेरेंट का मेथड एक्सेस कर सकते का? हाँ, पेरेंट का नहीं, वो सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं होता। ओके, सो ऑलवेज इट विल कॉल द पेरेंट मेथड, इमीडिएट पेरेंट।
समझ में आया? अभी मैंने मेथड किया, अगर मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए था, इसमें अगर मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है डेफ इनिट, अगर मैं डेफ इनिट और इसमें कंस्ट्रक्टर लिखा प्रिंट, यहाँ पे इनिट इनिट फ्रॉम ए, ओके, उसको मैं कॉल करता हूँ कॉपी फ्रॉम बी, और यहाँ पर फ्रॉम सी, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? सी वाला, ठीक है। अभी मुझे ऊपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सी में से बी का करना है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सुपर, ये भी एक ऐसा भी चलता है, अदरवाइज डायरेक्ट पूरा निकाल दो, कुछ नहीं, ठीक है। सो यू कैन सी नाउ, पहले कौन सा हुआ? बी, क्योंकि मैंने पहले इनिट कॉल करते ही पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो यहाँ आ गया बी, बाद में सी। अगर यहाँ पे भी कॉल करता हूँ मैं सुपर से, सुपर, ओके, सो देन यू कैन सी ए बी सी। ओके, यस। अगर पैरामीटर भेजना है, अगर सपोज हमने, देखो अभी ये एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ। सपोज वी हैव डिजाइन एंड क्लास टू टेक, सपोज क्लास पर्सनल डिटेल्स, ओके, डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे डेफ हमने इनिट हियर नेम एज, बस इतना ही। सो हियर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ओके, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। सो डेफ m1, यहाँ पे मैं करता हूँ शो एंड सेल्फ डॉट नेम, ओके, प्रिंट सेल्फ डॉट एज, ये मैंने किया, ठीक है। अब मुझे इसका फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करना है, मुझे इसमें है ना मार्क्स वगैरह ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर क्लास, इसको मैं मार्क्स एडिशन करता हूँ, एडिशन, ठीक है। मैं इसको पर्सनल डिटेल्स को मैंने एडिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डेफ इनिट, देखो अभी ध्यान से, इनिट, तो इसमें मुझे नेम भी रखना है, एज भी रखना है, और इसमें मुझे मार्क्स ऐड करना है, यस मार्क्स, ठीक है। अब मैंने तो ऑलरेडी नेम और एज तो ले लिया ना, इसका मैंने ये है मेरे पास, मुझे सिर्फ क्या करना है, उसको एग्जिस्टिंग को यूज करना है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, सुपर, हाँ, सुपर डॉट क्या इनिट, क्या भेजना है यहाँ से, नेम और एज। ये हमने जो अभी जिसने बोला था कि सर हम कंस्ट्रक्टर को दूसरे वे से कॉल नहीं कर सकते, दिस इज द वे, करेक्ट? हाँ, यही पूछा था मैंने। यस, सो हियर नेम एंड एज वी आर पासिंग, कोई इशू नहीं। हियर सेल्फ डॉट मार्क्स, ओनली यूनिट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। डेफ शो 1, कोई इशू नहीं, या शो भी कर सकता हूँ डायरेक्टली शो, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको इसमें, मुझे ऊपर का वो मार्क्स वगैरह चाहिए, मैंने ऑलरेडी शो किया है, तो उसको मैं ऐसे ही कर, सिंपल, ओके। कौन सा है वो, शो नहीं, मेरा M1 है ना, M1, ठीक है, M1, ओके। बाद में फिर प्रिंट, यहाँ पे सेल्फ डॉट मार्क्स, चाहे तो मैं आपको दिखने के लिए इधर अच्छा सा नेम, यहाँ पे एज, और यहाँ पे मार्क्स, ठीक है।
हो गया, मैंने एग्जिस्टिंग इसको यूज कर लिया। अभी obj इज इक्वल टू कहाँ पे मार्क्स एडिशन, क्या क्या भेजना पड़ेगा, नाम जॉन, वो एज क्या है 35 हो, मार्क्स इतने हैं सपोज 90%, ठीक है। obj डॉट क्या करूँ शो, खत्म, आ गया। यस सर। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी, एक्सटेंड किया हमने, ऑलरेडी लिखा था, ऑलरेडी नेम और एज के लिए कोड लिखा था, हमने जस्ट हमारा मार्क्स के लिए हमने ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेट हो गया है, इनहांस हो गया, किया ना हमने इनहांस। पहले इसको कुछ किया क्या, अगर मैं पहले ये करता था, पहला पहला कौन सा था हमारा क्लास, कौन सा था पर्सनल डिटेल्स वाला, ठीक है। अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था पर्सनल डिटेल्स, तो ये दो ही लेता था पर्सनल डिटेल्स, कोई इशू नहीं, पर्सनल डिटेल्स obj m1, ठीक है, ये दो ही करता था, करेक्ट, नेम जॉन एंड 35 हमने ऐड किया, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड किया ना। यस। So now we can use the whatever the constructor in a parent, whatever the method in the parent, we can use directly in the child. So this is what the super method. तो विथ पैरामीटर भी मैंने बता दिया, विथ पैरामीटर ये कैसे पैरामीटर सेंड करना है। ऐसे मेथड का भी कर सकते हो, मेथड का पैरामीटर है, अगर सपोज आपको आपने कुछ ये कोड कैलकुलेशन, ऐड करो ना सर उसमें, बोलो ये कोड इसमें सेव करो ना। इसे ऊपर क्या हो, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, फिर इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ। अगर सपोज मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशन का था, मार्क्स वाला कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेप कैल करता हूँ, कैल, और इसमें कुछ कैलकुलेशन है सपोज, तो प्रिंट मैं क्या करता हूँ क्या करूँ बोलो, क्या करूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स करता हूँ, सेल्फ डॉट क्या करूँ मैं उसको, नहीं उधर नहीं कर सकता। तो नीचे वाले में 2 मार्क्स फंक्शंस में ऐड करके एग्रीगेट निकल सकते हैं तो एवरेज मार्क्स को परसेंटेज में, मार्क्स 2 लेकर एग्रीगेट करके दिखा सकते हो कैसे। यस आप आपके हिसाब से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सो आप एक बार ट्राई करो, चलेगा। यस सर। यस। ओके सो टुमारो, कल हम कुछ एक्स्ट्रा क्या लेते हैं, और कल और अगर ऐसा रहा तो हम और एक एक्स्ट्रा लूंगा, कोई इशू नहीं। सर आजची लिंक नाही आली मला, काय नाव, मयुरी लिंक 21। लिंक नहीं है, लिंक नहीं थी आज का, कैलेंडर इनवाइट था। कैलेंडर इनवाइट भी नहीं आया है सर। हाँ सर, क्या बात है, है, अपडेट ही नहीं हुआ हमारे। सर वो मीठी शो कर रहा है अभी भी। हाँ मीट ही आ रहा है उधर। क्या आ रहा है, गूगल मीट फॉर्मेशन। अरे कैसे बनोगे यार, आईटी इंजीनियर आप, मुझे समझ नहीं आता है। वो गूगल मीट के अंदर है मेरा टीम्स का लिंक, मैंने टीम्स का लिंक, और एक मैंने लिंक है गूगल उसके अंदर। कैलेंडर इसको मैंने इंजेक्ट किया है। एक कैंडिडेट ने डाला भी है, ये देखो मैंने वो कैलेंडर इनवाइट में मैंने इंजेक्ट किया है इसको। कैसा होगा फिर आपका, फिर मैं कभी बोलता नहीं, फिर आपको गुस्सा आ जाएगा। आप ठीक से देखते जाओगे, ये रियल टाइम में नहीं चलेगा ना। अब ये कैंडिडेट में डाला है तो उसने वो बेचारे ने एकदम ये करके दिया है, आई डोंट नो किसने डाला है, किसने डाला था वो, ये देखो डाला है कि भाई एडवांस पाइथन में, ये इधर ये लिंक है, इधर नहीं क्लिक करना था, इधर था वो।
इसके लिए थोड़ा सा है ना आंखें प्लीज। मैंने पहले ही बोला था, अब 23 को बोला था कि टीम्स पे ज्वाइन करो। आपको जो लिंक आएगा वो सेपरेटली बोला था मैंने कि आपको टीम्स का लिंक आएगा। कैसा चलेगा मुझे बोलो ना। सर वो क्या कंफ्यूजन हुआ पता है क्या, कि वो मीट पे कैलेंडर पे टाइमिंग थोड़ा सा मॉर्निंग का सेशन का दिखा रहा था, तो वी थॉट कि मॉर्निंग ऐसा का है। ओके हाँ ओके। वो इवनिंग के सेशंस में शो नहीं कर रहा है कैलेंडर में, वो मॉर्निंग सेशन में शो कर रहा है। तो नहीं लेकिन मैंने 21 to 22 है। नहीं सर, एटलीस्ट माय साइड तो वो दिखा रहा है मॉर्निंग का हाँ शो क्या, कर रहा है। हाँ इसीलिए मे बी हो सकता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा हमको 8 से 9 था ना सर अपना टाइमिंग 23 बैच का, वो कंटिन्यू वैसे कंटिन्यू दिखा रहा है वो कैलेंडर पे अभी भी। ओके वो इसका गूगल का बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ उसका रह गया होगा। हाँ। एक सेकंड उसका रह गया होगा वो, एक सेकंड। हाँ मे बी उसके वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक सेकंड यही बोल रहे हो क्या आप? नहीं तो यार ये तो मैंने अपडेट कर दिया ना। 2 लिंक मिली सर आज एट अ टाइम। नहीं सर, 9 के क्लास के भी 2 लिंक है। ओके जस्ट अ मिनट। अब देखो, अब गया पूरा लिंक सबका। चेक कर लो एक बार। गया है। अब कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है? देखो इस पे क्लिक किया ना तो इसके अंदर का लिंक ज्वाइन करो गाइस। इसको मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको क्लिक किया और उधर ही वेट करते रहे। तो प्लीज दिस वन, अदरवाइज अभी ये लिंक सेव कर लो कहीं पे भी। अब यही रहने वाला है तो फिर इसको सेव कर लो, ठीक है। और उसको ये करो गाइस, ये मैंने एएसपी भेजा ना वो यस करो, यस। फिर आपको वो ये नहीं करेगा, वो एडमिट करने के लिए पूछेगा नहीं। और ये 9 PM टू करेक्ट 10 PM, इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि देखो 38 कैंडिडेट लोगों ने यस किया है, 92 अभी भी वेटिंग में, ठीक है। सर अभी ये टाइमिंग 9 to 10 रहेगा ना? यस यस फिक्स जब तक वो सिक्वल का चल रहा है तब तक। सिक्वल का हो गया गाइस आपका पूरा? सिक्वल ETL हो गया? सर कौन सी बैच का? स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है सर, सिर्फ नहीं यही हमारा चल नहीं रहा है। सर। पाइथन 21 22 सर 22 का नहीं हुआ। 21 का कुछ स्टूडेंट का हुआ है सर। ओके क्योंकि मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट वो लेना था एक्चुअली। मुझे ये लेना है, मैं बताता हूँ आपको क्या लेना है। मुझे ये लेना है, ये कौन सा, दिस वन, ये। तो जब तक आपका डेटाबेस का नहीं होता ना तब तक फिर ये नहीं बता सकता मैं। एग्जीक्यूट फेच ऑल, फेच मेनी, फेच एग्जीक्यूट वन। सर आज वो दिगंबर सर का लेक्चर नहीं था सर 7:30 को। ओके सर आप एकदम लोग एसक्यूएल चालू कर दो। मुझे कहाँ आता है रे यार एसक्यूएल, मुझे आता होता तो मैं ही सर पढ़ा ऐसा हो ही नहीं देता। सकता, आपको सब आता है सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, अगर नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। सर वो आप एक संडे का सेशन लेने वाले थे AWS का 21 AWS का मतलब इस सबका है सर। बार तो ये था ना वो स्वामी जी का कुछ तो भी था ना, मैं नहीं था। हाँ सर, यस सर। हाँ सर, उसके बाद ही डिस्कशन हुआ था अपना कि नहीं हुआ वो कुछ तो लिंक में नहीं हुआ था आप क्या? बोल रहे थे आप में एक लिंक आई थी। नहीं इस संडे है ना नहीं मेरा। सर, आप वो गाँव गए थे कोई तो हाँ नहीं इस संडे है मेरा, डोंट वरी। इस सर संडे हमारा वो पाइथन 22 का भी रहता है सर। पाइथन 22 का क्या? वो एक लेक्चर लेना था सर आपने रिवीजन का। ओके 22 का, ठीक है। छूटे जा रहे हैं सर। एक काम करते हैं, रिवीजन को इसको इसी लिंक को बैठो
इसी लिंक को हम क्या करेंगे, संडे को पूरे जितने लोग हैं ना हमारे 22, 23, 21 तीनों इसका फुल पाइथन रिवीजन ले लेता हूँ मैं। चलेगा? चलेगा क्या? बेटर है सर। दौड़ेगा सर, चलेगा चलेगा सर, लेकिन आप बोलते हो सर फिर छोड़ देते हो। अरे वो टाइम की वजह से यार होता है, बाकी कुछ नहीं है। क्या पता है क्या, टाइम और फिर ये सेशन वगैरह भी रहता है ना ये आपका, ठीक है। लेकिन ये इस सैटरडे को लेता हूँ यार मैं, संडे को नहीं, सैटरडे को लेता हूँ। फिर मुझे संडे को है ना मैं कौन सा तो भी एक सेशन लेता हूँ ना, बहुत दिन हुए सेशन ही नहीं लिया मैंने वेब स्क्रैपिंग पे या रेगुलर एक्सप्रेशन पे। सर वो गिटअप का भी बाकी ना एक लेक्चर। चलो गिट का ले लेता हूँ, गिट को कंप्लीट कर देंगे। चलेगा? यस सर, वो गिट का गिट को रब। जिनको गिट का नहीं आता है, हाँ सर, बेटर है वो। हाँ जिनको गिट 22 का का नहीं तो हुआ पता नहीं है, सर गीत का। हाँ ना, तो फिर उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनको नहीं आता है ना, तो सैटरडे को क्या करो, सैटरडे को गिट को सब लोग बैठो, इस सैटरडे में फर्स्ट पार्ट टाइम क्या होगा सर? वो देखेंगे ना अभी, क्योंकि वो अभी कुछ दूसरा लेक्चर वगैरह रहा तो उस दिन पाइथन नहीं होगा। मॉर्निंग में ले लो सर। और हाँ सर, गीत का मॉर्निंग भी अच्छे होते हैं। यस यस यस। और संडे को एक्सटेंडेड पार्ट, बोल तो 2 पार्ट में लेंगे गीत का, ठीक है ना। सैटरडे को और जो कमिंग बोलते जो बोलते हैं ना, जो न्यू लोगो बोलते नए कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, बेसिक पार्ट। और संडे के दिन पूरा एडवांस पार्ट, रीबेस रीसेट वगैरह पूरा टोटल कंप्लीट गिट। और पाइथन सर? पाइथन रहेगा संडे के दिन रहेगा, क्योंकि आपका सर- रिवीजन ले लेता हूँ मैं। सर अभी आप है ना, अब नहीं जाने वाले हैं ना किधर? नहीं, उस पे अभी कोई नो कमेंट्स। वो एबो डरा हुआ है सर। नहीं वैसा कुछ नहीं है। अरे मेरे से अच्छा आ जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अरे नहीं अरे उसको सर, उसकी हमने वजह कहा से बोला बात आपसे अच्छा चाहिए करके। ठीक है, चलेगा। मैं इस संडे को डेफिनेटली पाइथन का रिवीजन प्लस गिट का चलेगा। 2 घंटे मॉर्निंग में गिट का लेंगे और इवनिंग में हमारा जो रेगुलर टाइम है उस पे पाइथन ले लेंगे। यस सर। चलो डन, यस सर। इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तब चलो तक सर वो ईटेल और मतलब खत्म हो जाएगा सर, दिगंबर सर का 3-4 ही लेक्चर बाकी अभी। ओके, तो अच्छी बात है। फिर तो फिर हम पाइथन विद डेटाबेस भी ले लेंगे, फिर कैसा कनेक्शन करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सर में मुझे सिलेबस एक बार शेयर कर दीजिए ना सर। ये है ना, ऑलरेडी शेयर्ड है ना, ये पूरा सिलेबस शेयर्ड है आपके पास। 4 पाइथन का ही था सर, ये एडवांस नहीं है इसमें। सर एडवांस का नहीं किया सर 23 को। हाँ सर, ये अभी ये सेंड कर दो। ठीक है चलो। सर 22 का एसक्यूएल वगैरह कब होगा, क्या आइडिया है क्या? 22 का व्हाट SQL 22 का एसक्यूएल वगैरह कब स्टार्ट होगा, कुछ आइडिया है ना क्या? इनके बाद में इनका होने के बाद में आपका सेशन चालू होने वाला है। मे भी इनका 2-3 दिन में खत्म होने वाला है, तो फिर आपका ही चलेगा ना। सर एक हेलो सर, एक पूछना था। हेलो सर, एक हेलो बोलो ना। सर एक फ्रीलांसिंग का लास्ट टाइम एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था ना सर आपको, एक्चुअल में जो अपना जो टीम है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो ये फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करता है सर स्टूडेंट को कि खुद ही देखना पड़ता है, सिर्फ आप गाइड करते हो? नहीं मैं बना के देता हूँ ना आपको, प्रोफाइल वगैरह मैं बना के मैं ये स्टूडेंट में नहीं करता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं म्यूट करो ना यार, म्यूट करो ना, बोल रहा हूँ बता। हेलो सर, हाँ सर, आपसे वो जो फ्रीलांसिंग मिल सकती है कि मतलब आप गाइड करोगे कहाँ कहाँ मिलेगा, वो ये पूछना था सर। सर आप म्यूट पे हो। सर आप अरे म्यूट पे हो सर। किसने कर दिया मुझे म्यूट? किसने तो भी कर दिया, जाने दो, ठीक है। बोले तो आपको प्रोफेशनल बोले तो ये करना है क्या, प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनना है क्या? नहीं सर, प्रोफेशनल नहीं, सिर्फ जैसा कोई अर्जन को किसी की जॉब है तो वो जॉब के साथ साथ में कर सके, उसका वो क्वेश्चन था ना, मतलब जिसको अदर सोर्स ऑफ इनकम जिससे बोला जाता है। हाँ, तो फिर उसको प्रोफेशनल फ्रीलांसर बोलते हैं फिर।
हाँ सर, तो फिर वो उसके अगर सोर्स ऑफ लिए इनकम चाहिए ना, तो फिर उसके लिए मैं आपको एक अच्छे से 2-3 प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको आपका प्रोफाइल बना के दूंगा। ओके, उसके बाद में उसमें कैसा रहता है, अभी डायरेक्टली अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो प्रोजेक्ट अप्रोच नहीं होते, क्लाइंट अप्रोच नहीं होते। वो कब होते हैं, जब आप उसका ट्रस्ट बिल्ड करते हो, बिल्ड्स होता है उसमें आपको रेटिंग की तरह। अगर आपका रेटिंग अगर अच्छा है, दैट मीन्स क्लाइंट से आपको रेटिंग मिलता है कि टाइमली डिलीवर्ड, क्वालिटी, क्वालिटी कोड, ऐसा कुछ बहुत सारे उनके ये रहते हैं। तो उसके हिसाब से जो नया क्लाइंट आता है वो पहले देखता है कि उसका फीडबैक कैसा है अदर क्लाइंट का, तब जाके वो ट्रस्ट करते हैं। समझ में आ गया? नहीं नहीं सर, जैसे सर आपने उस दिन बोला था ना सर कि जैसा आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग खुद कंडक्ट करते हो, मतलब क्लासेस भी है, फ्रीलांसिंग भी है, और उसके बाद में आपका जॉब भी शुरू है, तो मैं ये मेरा पूछना खुद था का कि करता हूँ आप। रे फ्रीलांसिंग। अच्छा, मैं ओके खुद, ओके। हाँ बोल तो, डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट हो गया, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट हो गया, जांगो रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, एपीआई इंटीग्रेशन हो गया, एपीआई टेस्टिंग हो गया, उसके बाद में डेटा पाइपलाइन हो गया, पावर बीआई के रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया। अभी पावर बीआई तो मैं खुद सीखा हूँ। एक एक मेरा ही कैंडिडेट है मकरंद बोल के, उसने मुझे पावर बीआई सिखाया था, अपना ही कैंडिडेट था। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी फिलहाल में, नया नया स्किल रिलेटेड। अभी मैं एयरफ्लो, डैक्स, एडब्ल्यूएस के S3, पोस्टग्रे, ये इनका पाइपलाइन का मैंने लिया है अभी, तो वो चल रहा है, लेकिन उसका टाइमलाइन बहुत आगे है, 6 मंथ का है। ओके, सर जो स्टूडेंट का अपना सर सिलेबस है अर्निंग कितना बड़ा होता है कर। सर? अर्निंग डॉलर में रहता है। मैं उसका सिर्फ अर्निंग शीट पाइथन और बता दूंगा। जांगो के बेसिस पे? यस यस यस, कर सकते पाइथन जांगो के बेस, क्योंकि पाइथन जांगो यू कैन बिल्ड एन एपीआई क्रिएट करके दे सकते हो आप, इंटीग्रेट करके दे सकते हो, डेटा स्क्रैप करके दे सकते हो, डेटा क्लीन करके दे सकते हो। आप अगर देखोगे ना तो नंबर ऑफ ये हुए, लेकिन ठीक है, अभी अभी फिलहाल में ये मत करो, मैं आपको पूरा डिटेल में दे दूंगा, डोंट वरी। पर जहाँ तक मैंने सुना है सर, कंपटीशन बहुत रहता है वहाँ, मतलब फ्रीलांसिंग बहुत वेबसाइट्स पे। कंपटीशन, वो प्राइसिंग बहुत कम रखते हैं ना रे, कोई कोई प्राइसिंग पे भी ओके। रहता है ना, इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि क्लाइंट अगर उसको सेम वर्क अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो वो उसको अप्रोच होता है फिर। बहुत ठीक है, बार होता है सर, लेकिन वो मिलता नहीं है। हाँ, वो सर मिलने के लिए प्राइवेटली आपको, नहीं सर, प्राइवेटली आप दे सकते हो क्या, जैसा आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू मिल सकता है क्या, ऐसा मैं पूछ हाँ रहा तो था। वही तो बोला ना मैं आपको, अगर चाहिए तो मैं मेरे ही टास्क आपको ब्रेक करके दे सकता हूँ, डोंट वरी। ओके, ओके, तो ऐसे कर सकता हूँ। ओके आपके नीचे रहना है। अरे नहीं, सर, ऐसा वो नहीं, आपके मेरे नोट शेयर साथ कर काम देगा? करो, मेरे साथ काम करो। जी ठीक जी है ना, मैं बिल्कुल। मैं बिल्कुल मैं आपको ये करूंगा, डोंट वरी। मुझे तो टीम चाहिए यार, चलेगा मेरे सर। मैंने पिछली बार मैंने टीम टीम के लिए बहुत ये हो गया, पता है क्या, टीम ही नहीं मिल रही मुझे अच्छी। अरे सर, ये बैच होने के बाद इंटरव्यू ले लेना, सिलेक्ट कर लेना बंदे, ये इसी बैचों में से, तीनों बैचों में से। नहीं सही में, मैंने पुणे में मैंने जो पहले प्रीवियस बैचेस के जो स्टूडेंट है उनको कॉल कर 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 उनको मैंने बुलाया उधर पुणे में, जब लॉकडाउन के पहले, तो उन्होंने किया ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। एक मेरे एक सुयस नाम का कैंडिडेट था, इज वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली, वो तो बाद में उसने खुद का फ्रीलांसिंग, मैंने ही उसको प्रोफाइल वगैरह बना के दिया, तो उसको जब तक जॉब नहीं लगता था ना, उसने फ्रीलांसिंग पे पूरा फीस वगैरह पेड कर दिया। बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो प्राइस था पूरा फ्रीलांसिंग पे किया उसने। ठीक है ना, अच्छा जॉब है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, टाइमली डिलीवर करना पड़ता है। समझ में आया? सर वो पैकेज पूरता है कि फ्रीलांसिंग में काम करना पड़ता है? नहीं नहीं, पैकेज, क्योंकि फ्रीलांसिंग में फिक्स नहीं ना रे कि आएगा ही प्रोजेक्ट कभी आपका काम मिलेगा, बिल्स। कभी नहीं मिलेगा। अगर बिल्स अच्छा है आपका, पूरा रेटिंग बढ़िया है, तो फिर आपको जॉब भी करने की जरूरत नहीं है, फिर इतना बढ़िया काम रहता है। फिर यू कैन बिल्ड एन योर ओन टीम, आप खुद की टीम बनाकर वो उतना टास्क दे सकते हो बुक करके उनको। ओके, चलिए, बहुत सारे है गाइस, आप सब सीखो।
आगे बहुत प्लेटफॉर्म है। सर आप वो पावर बीआई का सेशन लेंगे क्या? हाँ लेना है तो ले सकते हो, उसमें क्या है। तो वो भी रख देना ना सर। आपको पावर बेस सीखना है क्या? हाँ सर। ओके चलेगा। और मैं अभी फिलहाल में पावर बीआई भी है ना मेरे इसमें प्रोजेक्ट। बोले तो मेरा लास्ट टास्क क्या रहता है, 2:10-15 तक समझा, पूरा जितना मैंने एनालिसिस किया जो कुछ किया तो हमें पावर बीआई क्लाइंट को पब्लिश करना पड़ता है। क्लाइंट बोले तो हम पहले ऑलरेडी हमने सेटअप किया है, उसका लोकल डायरेक्टरी, उसका डेटाबेस कनेक्शन ऑलरेडी करके रखा है। जस्ट रिफ्रेश हो गया उधर रेडशिफ्ट, हम इधर पावर बीआई को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया वो पूरा पावर बीआई के वैल्यूज वगैरह पॉपुलेट होते हैं, उसी को हम पब्लिश कर देते हैं डेट चेंज कर कर। ठीक है बताऊंगा मैं, कोई इशू नहीं, उसको वो रिपोर्ट भी बताऊंगा मैं कैसे रहता है। ठीक है चलेगा। चलो बाय गाइस। थैंक यू सर। थैंक्स गुड नाइट बाय। थैंक्स थैंक यू सर। थैंक्स बाय सर, गुड नाइट। बाय गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट सर। गुड नाइट।